Good morning, children. This is your GK class. So, children, kindly take out your GK books and a pencil. We are going to start a new chapter, that is Interesting Bugs, which is given on page number 14. Children, kindly open page number 14 in your GK book. We are going to start a new chapter, Interesting Bugs. So, what do you understand by bugs? Children, bugs means insects. Small insects are called bugs. So, why interesting is given in the name of the chapter? Interesting is given as the name of the chapter because interesting bugs means unique. Those insects which have unique or unlikely features or characteristics in their bodies. So that insects are interesting to study about. Clear? So the first insect which we are going to study is about ladybugs. Children, you see in your book a picture of ladybug is given. So let's study about this insect. Ladybugs are usually 8 to 10 mm long. Mm means millimeter. Ladybugs are usually 8 to 10 mm long. So children, I'll make you underline few sentences in each heading so that in exam I am going to give you these important sentences in the form of fill in the blanks, true, false or match the following. Clear? So these sentences which I am going to make you underline, kindly learn those sentences. Clear? So you have to underline ladybugs are 8 to 10 mm long. So children, in this particular line, the size about the body of the ladybug is given. So write SIZE, size. SIZE, size. तो चिल्ड्रन एग्ज़ाम में कैसे आएगा? एग्ज़ाम में आ सकता है कि द साइज ऑफ लेडी बग्स आर डैश टू डैश लॉन्ग. So you have to write the answer 8 to 10 mm long. Okay, children, this is Z. Okay, so आगे बढ़ते हैं. सेकेंड लाइन है they have short legs and are usually brightly colored with black, yellow or reddish markings. Children, ladybug जो insect है वो brightly colored है. ब्राइटली कलर्ड मीन्स कि बहुत ब्राइट कलर की होती है. फॉर एग्जांपल येलो कलर से हो सकती है या रेड कलर की हो सकती है और ब्लैक कलर से मार्किंग होती है. तो ऐसी लेडी बग्स का डिज़ाइन होता है या इस शेप में होती है जो रेड कलर की है एंड ये जो ब्लैक है वो मार्किंग्स है उसकी बॉडी पे. नेक्स्ट लाइन इज दे लिव ओनली फॉर अबाउट 4 weeks. अंडरलाइन दिस लाइन. लेडी बग्स, दे किसके लिए आया है बेटा? लेडी बग्स के लिए, बिकॉज हम इस पैराग्राफ में लेडी बग्स के बारे में पढ़ रहे हैं. सो लेडी बग्स जो है वो लिव ओनली फॉर अबाउट 4 weeks. तो लेडी बग्स का लाइफ स्पैन क्या है? वो कितने वीक्स के लिए ज़िंदा रह सकती है? ओनली 4 weeks के लिए. क्लियर? तो लेडी बग्स सिर्फ 4 weeks तक ही जीवित रह सकती हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है. तो वो 4 weeks तक ही सर्वाइव कर सकती हैं लेडी बग्स. दे आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू कंट्रोल पेस्ट. चिल्ड्रन, लेडी बग्स आर ऑल्सो फार्मर्स फ्रेंड. वाई दे आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड? बिकॉज जब फार्मर्स एग्रीकल्चरल लैंड में
क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वीट ग्रो किया या शुगर केन ग्रो किया, तो उन क्रॉप्स में पेस्ट लग जाते हैं। पेस्ट भी एक टाइप का इंसेक्ट है, ठीक है। तो ये जो पेस्ट है वो क्रॉप्स को ख़राब कर देता है, खा जाता है। तो उन पेस्ट को भगाने के लिए या इनका नाश करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए फार्मर्स लेडी बग्स की हेल्प लेते हैं। तो लेडी बग्स इन पेस्ट को खा जाती है और क्रॉप से ये पेस्ट रिमूव हो जाते हैं। इसलिए लेडी बग्स को कहा जाता है फार्मर्स फ्रेंड, क्योंकि वो फार्मर की हेल्प करते हैं टू रिमूव पेस्ट फ्रॉम द क्रॉप्स। ओके, so they are यानी ladybugs are used by farmers to control pest. Clear? So let's move to the next insect which is spider. Spiders आप जानते हैं, ये देखिए ये स्पाइडर का वेब है, मकड़ी का जाल। स्पाइडर को हिंदी में क्या कहते हैं? मकड़ी, है ना। आपके घर में होगी, जब आपके घर में जाला लग जाता है तो मकड़ी अपना वेब बना लेती है, उसी को क्या बोलते हैं? जाल। ठीक, दिस इज वेब एंड दिस इज स्पाइडर। स्पाइडर्स हैव 8 legs. Underline, children. Important in true false or fill in the blanks. So we can give you as true false, like spiders have 6 legs. So this statement is false, because spiders have 8 legs, right? So in this way ऐसे questions एग्जाम में आ सकते हैं। So आपको ये जो statements दिए हैं, lines दिए हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। Spiders have 8 legs. 8 legs होते हैं spiders के, and their bodies are divided into 2 parts. ये देखिए 2 parts में divided है, इस तरफ एक इस तरफ, ठीक। They make silk webs. वेब्स मीन्स यही मकड़ी का जाला, टू कैच अदर इंसेक्ट्स। सो स्पाइडर क्या होती है? अदर इंसेक्ट्स को खा जाती हैं एज देयर फूड। सो वो ये जाल बनाती हैं सो दैट दूसरे इंसेक्ट्स छोटे छोटे इस जाल में फंस जाएं और फिर स्पाइडर उनको खा ले। दे लिव एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर एंटार्क्टिका। चिल्ड्रन, एंटार्क्टिका इज अ प्लेस वेयर spiders cannot be found. So these spiders cannot live in Antarctica. Rest of the world they can live everywhere. Clear? So in this paragraph only this much line you have to underline. So moving to the next insect, that is dragonflies. Dragonflies. So children, kindly see the picture of a dragonfly. It is given in your book, page number 14. Look, 14 page we are studying. Okay, so dragonflies usually live near fresh water. Underline this line, very important. Dragonflies कहाँ रहती हैं? Fresh water के पास रहती हैं, fresh water. They have long and strong bodies. ड्रैगन फ्लाई की जो बॉडी होती है, ये बॉडी है वो बहुत लॉन्ग होती है, देखिए लंबी है, और स्ट्रॉन्ग भी होती है। ऑफ डाइवर्स कलर्स। डाइवर्स मीन्स वेरियस, भिन्न भिन्न। डाइवर्स का मतलब होता है वेरियस कलर्स या अलग अलग कलर्स के, बॉडी में कलर्स, अलग अलग कलर्स होते हैं उनकी बॉडी में, ठीक है। दे ऑल्सो हैव ह्यूज आइज। उनकी आइज क्या होती हैं? बहुत बड़ी होती है। ह्यूज मीन्स बिग, राइट? द मीनिंग ऑफ ह्यूज, बिग। Dragonflies are known for their swift movement and are also among the fastest insects. यानी ड्रैगन फ्लाइज का जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट मीन्स जैसे वो मूव करती हैं, हिलती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो वो बहुत स्विफ्ट होता है। स्विफ्ट मीन्स स्मूथ। एंड आर ऑल्सो अमंग द फास्टेस्ट इंसेक्ट्स, यानी बहुत सारे इंसेक्ट्स में ये फास्ट है, यानी फास्टेस्ट इंसेक्ट्स हैं अमंग द मैनी इंसेक्ट्स। ये बहुत तेज़ उड़ती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इंसेक्ट इज ग्रास हॉपर्स. क्लियर. ग्रास हॉपर्स का पिक्चर देखिए कैसे, आपने देखा होगा ग्रास हॉपर्स ग्रीन कलर के होते हैं. ठीक है, ये देखिए ग्रास हॉपर है. चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. ग्रास हॉपर्स यूजुअली जंप और क्रॉल, या तो वो रेंगते हैं या तो जंप करते हैं. बट मोस्ट काइंड्स कैन फ्लाई. ग्रास हॉपर्स जंप भी कर सकते हैं, क्रॉल भी कर सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं. मोस्ट ग्रास हॉपर्स ईट ओनली प्लांट्स. बहुत सारे ग्रास हॉपर्स जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं. क्या खाते हैं ग्रास हॉपर्स? प्लांट्स खाते हैं. Some kinds move in large groups and destroy farmers' crops. So ये farmers के enemies होते हैं. आपने पढ़ा था कि लेडी बग्स क्या है? farmers के friend. ठीक. लेकिन ग्रास हॉपर्स क्या है? farmers के enemies. Why? Because ये farmers के crops को क्या करते हैं? destroy यानी बर्बाद कर देते हैं. Some kinds move in large groups. बहुत सारे ग्रास हॉपर्स होते हैं ग्रुप्स में जाते हैं और फार्मर्स के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं. They have antenna on their heads. अब देखिए, ये देखिए एंटीना, ये एंटीना है ग्रास हॉपर के हेड पे. They have antenna on their heads which they use to touch and smell. और इस एंटीना की हेल्प से ग्रास हॉपर्स टच कर सकते हैं कोई भी चीज़, प्लांट्स को, और स्मेल कर सकते हैं. ठीक. दे ऑल्सो हैव आइज, स्पेशल आइज दैट अलाउ देम टू सी इन ऑल डायरेक्शंस एट वंस. तो जो इनकी आइज़ है इसकी हेल्प से ग्रास हॉपर्स सारी डायरेक्शन में वो देख सकते हैं. ठीक. सो चिल्ड्रन, in this session we are going to do only one page, that is 14, and in the next session we are going to do page 15. Clear? And we are going to do this exercise also. So we are going to do this page in the next class. Clear? Till then children, study all these 4 insects again by yourself. And if you do not understand anything or any line you cannot understand properly, then you can text me on the WhatsApp. Okay. So thank you class and have a wonderful day.